बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। नाज़रीन, आपको फनकारों के घर लिए चलते हैं। वहां फाका तो पहले से ही मौजूद था, अब किसी जिन की भी आमद है, मगर जिन है बड़ा दिलचस्प। देखते हैं कि फनकारों के घर में क्या हो रहा है। दूरों दूरों अखियां मारे नार पटोले बदगी लोगों था मर गई जे नूरो को वे सारे मुंडा पटवारी दा डंडा डेंडा 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 मारे मुंडा पटवारी दा। क्यों कैसा मजा आया भाई? पुत्र मेरे पैरों ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ, क्या सोहना गाया है। और मैं अपनी जिंदगी ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਚੋੜ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਕੁੜਤਾ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਆਹੋ, ਸਾਰਾ ਨਿਚੋੜ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਕ ਭਰਾਈ ਚੂਈ ਵਰਗਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਜੀ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਭਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਸਾਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇਸ ਗੁਸਰੇ ਘਰਾਣੇ 'ਚ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਵੋ ਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੱਢੋ। ਸ਼ੌਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੋਰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਡਾਂਗਾ ਨਿਕਲਣੀਆਂ। ਹਾਏ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਲਾਮਤ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸੀ? ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਤੇ ਸਲਾਮਤ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ੀ ਸਲਾਮਤ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਸੁਰੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ, ਮੂੰਹ ਹੀ ਹਾਕਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਉੱਤੋਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਕੈਂਚੀ ਕੈਂਚੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੈਂਚੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਸਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। अच्छा जी, इनको क्यों बांधा हुआ है जो गुड्डो साहब हैं आपकी? ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੁੱਲੀ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਟੱਕਰਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਜਿੰਨ ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਲਈ ਬੰਨਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਲਾ ਤੋੜਾ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਏ ਸ਼ਾਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਾਜੀ ਗੁੱਡੋ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਬੇਰੀ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਿਆਜ਼ ਨਾ ਕਰ। ਹਾਏ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰਿਆਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੇਰੀ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਲੈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਖੇੜੇ ਨਾ ਭੇਜਣ ਡਏ। ਹਾਏ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਨ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿੰਦੇ ਨੱਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈਂ? ਗਾਲਾਂ ਗਾਓ। जिन्ना तेरी मर्जी नचा बेलिया, जिन्ना तेरी मर्जी नचा बेलिया, तेरे मन दिन मारी तेरी मारिया, जिन्ना तेरी मर्जी नचा बेलिया, जिन्ना तेरी मर्जी। जिम्बोला 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 जिम्बोला। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਵੇਖ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਬੋਲਾ बाबा जी की होया, सुंघ रहे धोती नूं अग लगी। जिम्बोला 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 जिम्बोला। ਮੇਰਾ ਸੋਹਰਾ ਆ ਗਿਆ। किस लड़की च जिंदा साया है? बाबा जी चिन्ह कटना टाइम नहीं कटना। जम्बूला ਹਾਏ थले आजा थले। हाय हाय ਵੀਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਿੰਨ ਕਢਾਣ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤਰਲਾ ਹੀ ਐਸਾ ਪਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੰਬੂਲਾ ਆਜਾ ਥਲੇ ਆਜਾ ਥਲੇ ਆਜਾ। ਜੀ ਪਟਾਸ ਦਮ ਪੁਖਤ ਗਰੁੰਬਾ 6 ਗਾਜਰਾਂ 11 ਕਿਲੋ 2 ਆਟੇ ਦੇ ਤੋੜੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਟੇ ਦੇ ਤੋੜੇ 4 ਕਰ ਲਓ। क्यों ਵੀਰੇ, ਤੂੰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਪਰੌਠੇ ਲਾਉਣੇ? ਪਰੌਠੇ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਬਾਬਾ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ। ਕਰਨ ਕੀ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਬੜਾ ਚਿੱਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। ਜਿੰਨ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨ। ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਣਾ ਈ। देखो बच्चा, मैं हुणे जिन कटांगा। जंबूला ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੰਨ ਕੱਢੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਕਾੜਨ ਨੇ। ਬਾਜੀ मुझे क्यों निकाला? मुझे क्यों निकाला? ਬਾਬਾ ਜੀ मुझे क्यों निकाला? तुम्हें बिला वजह निकाला। तुम्हें जिस वजह से निकाला वो रहता है बनी गाला। अस्सलाम वालेकुम मुर्शद। वालेकुम अस्सलाम। मेरे गोडे में क्यों हाथ ला रहे हो? ਜਦੋਂ ਚੜੇਲਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਬੋਲਣ ਦਾ। शादी को कोई बरीक जिन लगता।
ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤੂੰ ਤੇ ਮਰਿਆ ਤਾਇਆ ਇੱਧਰ ਹੋ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜਨ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੋ ਪਲੇ ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੋ ਤਾਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਵੀ ਫੈਲ ਗਈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪੈਣ ਡਈਆਂ ਬੇਟੇ ਜੀਤੇ ਰਹੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਜੀ ਜਿੰਨ ਬੜੇ ਬੜੇ ਡਰਾਉਣੇ ਵੇਖੇ ਸੀ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜੀ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਹੁਸੈਨ ਬਖਸ਼ ਗੁੱਲੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇਰਾ ਕੋ ਕਾਫ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਦਾ अब अभी कॉमेडी में आइए ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੋਈ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਚੰਗੀ ਜੁਗਤ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ जी मजाक के तौर पे एक और पेश करूं ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਕਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਟੋਪੀ ਹੁੰਦੀ ਮਜ਼ਾਕ के तौर पे जी ਹੋਰ ਇੱਕ ਆਵੇ ਜੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਬੂਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦ ਨੇ ਚੰਨ ਬਦੀਦ ਕਰਾਤਾ ਹੀ ਉਹ ਜੀ ਨਾ ਭਾਜੀ मेरी बात सुने खान साहब एक बार अगर उसने दाद दे दी थी तो दूसरी जुगत करने की क्या जरूरत ਮੈਂ है ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਡਿਆ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਵੇਖ ਓਏ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਪੈ ਗਈ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈਏ ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁਗਤ ਕਰਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਕੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਨੂੰ ਬਈ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਜੁਗਲ ਆਈ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੇ ਹੋ ਚੁੱਪ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਢਾੜੀ ਹੋ ਕੇ ਮੁਨਾਫਕ ਹੋਏ ਢਾੜੀ ਓਏ ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪ ਮੁੱਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਖ ਲਾਣਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਓਏ ਹੋਈ ਹਾਸਿਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੇ ਉਹ ਕੱਪ ਨਾਲ ਪਿਰਚ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਕੱਪ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਚਾਹ ਦਾ ਭਰਿਆ ਕੇ ਖਾਲੀ ਸੀ ਜਨ ਭਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਮਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਰੱਬਾ ਹੁੰਦਾ जिन साहब मेरी बात सुने आप इस घर में क्यों आए हैं यानी कि और इस औरत को क्यों तंग करते ਵੈਸੇ हैं? ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਠੋ ਵੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣਾ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਸਤਾਦ ਤਾਫੋ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਕੀ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਘੰਟਾ ਮੈਨੂੰ ਦਾਦਾ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰ ਲਵੋ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਕੋ ਕਾਫ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਲਿਆਉਣੀ ਉਹ ਮੈਂ ਖਾਣ ਲੱਗਣਾ ਤੂੰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਤਾਈ ਨੂੰ ਚੰਬੜ ਉਹ ਮੈਂ ਖਵਾਜਾ ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਜਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਾ ਹੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਚ ਆਂਡੇ ਵੇਚਦਾ ਫਿਰੇ ਵੇ ਭਰਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ ਭਲਾ ਤੂੰ ਗਾਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ 10-10 ਸਾਲ ਸਾਥ ਹੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੈ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕੋਕਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ 10 ਵਜੇ ਹਾਲ ਬੰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿੰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਹ ਪੁੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਦੇਗਾ ਚੱਟ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੰਨੇ ਆ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਕਾਫ ਜੀ, okay. ਕਰੋ ਤਿਆਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਾਜੀ ਗੁੱਡੋ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋ ਕਾਫ ਚ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ ਹੈ 2 ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ नाज़रीन स्टे विद अस कहीं नहीं जाइएगा छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है आप देख रहे हैं सियासी थिएटर
ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਓ ਭਾਈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਸਿਗਰਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਓਗੇ ਨਾ? ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਨੁਹਾਵਾਂਗੇ ਫੇਰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਬੜਾ ਚਾਲੂ ਜੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਮਿਆਰ ਜਿੰਨ ਨਹੀਂ ਝਾੜੀ ਜਿੰਨ ਦੇ। ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਨੁਹਾਉਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਚਰਸ ਲੱਥਣੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੇਚ ਲੈਣੀ। दश्त तो दश्त थे, दरिया भी ने छोड़े हमने। ओ अगे की है शाह जी, तुसी दिल दे डॉक्टर हो। बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। घोड़े हमने। ਉਹ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆ। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। नाज़रीन गिरामी, शादी का जो बंधन है, शादी का जो रिश्ता है, ये मियाँ और बीवी से बर्दाश्त का, मोहब्बत का और दरगुजर का मुतकाजी होता है। कॉम्प्रोमाइज़ जो है इंसान को करना पड़ता है जब कोई भी रिलेशनशिप में दो लोग रह रहे होते हैं, किसी भी रिलेशनशिप में दो लोग रह रहे होते हैं, तो थोड़ा सा दरगुजर, बर्दाश्त, कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो ज़रूरी होता है। वेस्ट में हमने देखा है कि बाज़ औक़ात सिर्फ इस बात पे तलाक हो जाती है कि एक पार्टनर जो है वो खराटे ज़्यादा लेता है, या एक पार्टनर जो है वो बगैर चप्पल पहने वॉशरूम में चला जाता है। ठीक बात है, ऐसी चीज़ें भी बाज़ औक़ात इंसान को अजियत देती हैं, मगर बहरहाल कुछ भी हो, ये मामूली बातें ही कंसिडर होंगी। अब मुसलमानों में भी ये मसला जो है वो कसरत से पाया जाता है, और छोटी छोटी बातों पर तलाक देने की खबरें जो हैं वो पूरी दुनिया से रिपोर्ट होती हैं। सऊदी अरब में भी मामूली झगड़ों पर मियाँ बीवी के दरमियान तलाक की शरह में हैरान कुन इजाफा हुआ है। आज हमारे साथ ऐसे ही 2-3 लोग मौजूद हैं जिन्होंने मामूली बातों पर तलाक दी है। शौहर भी मौजूद हैं, बीवी भी मौजूद है, मगर मैं आपके साथ शेयर करता चलूं कि इस वक्त जो शौहर हजरात हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने कितनी मामूली बात पर तलाक दी थी। मतलब ये साहब जो बैठे हैं, इन्होंने कई बार अपनी बीवी को समझाया था कि इनकी बीवी इनसे आगे मत चला करे, मगर जब बीवी नहीं मानी और उसने इनसे आगे चलने की कोशिश की, तो इस बात पर इन्होंने अपनी अहलिया को तलाक दे दी। तलाक देना कि हिम्मत दा काम है शाह जी। अच्छा। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ। ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 2-3 ਰੀ ਚਪੇੜਾ ਖਾ ਬੈਠੇ। यार ऐसी हिम्मत का क्या करना जो घर बर्बाद कर दे। ਇਹ ਤਾਂ ਬੂ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਪਾਈਆ ਹੈ ਤੇ ਆਣਾ ਮੌਤ ਨੇ ਕੁਆਂ ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਣੇ ਉਹ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸੀ। अच्छा बीबी, आप इनकी वो बीवी हैं जो जिनको इन्होंने मना किया था कि भी पीछे चले, मगर आप फिर भी आगे चलती थी, उन्होंने तलाक दे दी। हाँ जी पजान, उसने वजह सी क्या? मैं पीछे भलाकियां नहीं टुरनिया इस अच्छा, पाइये। आप अगर बुरा ना मनाएं तो ये मुमकिन है कि आप मतलब आपको देख के गुफ्तगू हो सके। शाह जी ਉਹਨੇ ਨਕਾਬ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਣੀ ਕਿ ਖੈਰ ਮਹਿਰਮ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਬੁਖਾਰੀ। पजान भला मैं इसने अगे किया टुरनिया। क्यों? ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਟੁਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੈਰ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਜੱਦੇ ਹੁੰਨਾ ਕਤਰ ਖਲੋਤੀ ਹੁੰਦੀ। हाँ हाँ मैं फास्ट ना सिया ए ढिला टुरना। ਉਹ ਅਰਬੀਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਢਿੱਲੇ ਟੁਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਸ਼ਤ ਤੋਂ ਦਸ਼ਤ ਥੇ, ਦਰਿਆ ਵੀ ਨੇ ਛੋੜੇ ਹਮਨੇ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋ। बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ਘੋੜੇ ਹਮਨੇ। ਉਹ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਘੋੜੇ ਦੜਾਉਂਦਾ ਦੇ ਆ, ਬੀਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਦੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਦੜਾ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣੇ ਮੈਂ। अच्छा बीबी, आपकी बात बीच में रह गई, तलाक क्यों हुई आपको? हाँ पजान मैं दसनी सिया, पहले मैं इस भाईये को पीछे टुरनी सिया। जी जी। एक रोज मैं टुरनी सिया, इसने पीछे, इसने एक लात छोटी है एक वड्डी है। अच्छा। माड़ी नजर पई ते माड़ा हासा निकली गया। उस तो बाद मैं अगे टुरना शुरू किया तो माड़े की तलाक चाहिए। अच्छा देखिए, एक चीज और जिस वजह से रिश्ते खराब होते हैं, इस्लामी फलसफा यह है कि मियाँ और बीवी जो हैं वो एक दूसरे की देखे ना, हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन। बारी ताला इरशाद फरमाते हैं कि मियाँ और बीवी एक दूसरे का लिबास है। इसका मतलब ही ये है कि एक दूसरे के जितने ऐब हैं, जैसे लिबास ऐब छुपाता है, ऐसे ही मियाँ बीवी को भी चाहिए कि अगर एक दूसरे में कोई भी ऐब हो, किसी भी तरह का ऐब हो, तो उसको मैदान में न लेके आए, लोगों से डिस्कस न करें। बहुत सारी तलाकों की एक वजह यह भी होती है कि मियाँ जो है वो अपनी औरत के हवाले से लोगों में बातें करता है, अपने खानदान में या अपने दोस्तों में या अपने बहन भाइयों के साथ। औरत भी यही करती है। नतीजा ये होता है कि बात बढ़ते बढ़ते बिलाखिर तलाक तक जा पहुंचती है। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਿੱਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਬ ਲਕਾਉਂਦੀ ਕੋਈ। वो तलाक होगी लोका की दसी छोड़ा, ताड़ा एक कान भी छोटा है एक वड्डा है। अच्छा ये खुद एक देखें, तलाक के बाद ना ग्रेस का मुजाहरा करना चाहिए। मसलन मैं समझता हूं कि अगर आप गौर करें तो इमरान खान साहब की और जमामा बीवी की जो डिवोर्स हुई है, उसके बाद दोनों शख्सियात ने बहुत ही ग्रेस का मुजाहरा किया है। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਲੱਤ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਸੀ। अच्छा आप देखें, आज तक जमामा बीबी की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया जो खान साहब की किसी कमजोरी की निशानदेही की हो। यही हाल खान साहब का भी। आप देखें, तलाक हुए बरसों हो गए, मगर खान साहब ने भी आज तक जमामा बीबी के खिलाफ कोई बात नहीं की। हाँ इसने एक और चवल सुनी कि ਉਹਦੀ ਵੀ ਚਵਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਯੂਸਫ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਚਵਲ ਨਾ ਦੱਸਣਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ।
अच्छा बीबी, ये आपके साहब का शौहर है? हाँ हाँ, ये पहला शोर है। पहला शौहर, इनसे भी आपको तलाक हुई? इसनी वजह से ना, ये आना सा अगे किया टुरनी है, ये आना सा पीछे किया। अच्छा नाज़रीन, एक वजह और भी इस तलाक की जो सामने आई वो भी आपके साथ शेयर करते चलें, जो अखबार में रिपोर्ट हुई है। इन मौसूफ ने अपनी अहलिया को इसलिए तलाक दी कि इनके कुछ मेहमान आए थे और इसने ये कहा कि जो खाने की बेहतरीन जो जुज़ था, बकरे की सिरी जो थी, वो इसकी अहलिया ने मेहमानों के सामने रखी ही नहीं। सिर्फ इतनी सी बात थी कि मेहमानों के सामने बकरे की सिरी क्यों पेश नहीं की, इस बुनियाद पर इस शख्स ने, इस अहमक शख्स ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। हाँ हाँ, बंदा पूछे सिरी बकरे नहीं सी के इसनी माऊ नहीं सी। मुझे एक बात बताएं शेख साहब, फिर भी ये कोई तलाक देने वाली बात है? अगर मेहमानों की खातिर मदारत में कोई कमी रह भी गई है अगर, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि अपनी बीवी को तलाक दे दे इंसान। शाह जी, मेहमान को आम नहीं सी। कौन था जी? डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੌਣ ਮੋਲ ਲਵੇ? ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਕਰੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ। अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਫੜ ਪਵਾਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਸਿਰੀ ਰੱਖੀ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਮੂਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਰੀ 'ਚ ਮਗਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਦਿਮਾਗ ਸਿਰੀ ਰੱਖਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। नाज़रीन, बहरहाल रिश्ते को आखिरी वक्त तक बचाने की कोशिश करनी चाहिए। और आप जानते हैं कि इस्लामी फ़लसफ़े में जो हलाल चीज़ें हैं, तलाक गो के एक हलाल चीज़ है, हलाल मामला है। अगर किसी वजह से रिश्ता न चल रहा हो तो बहुत सारे उसके स्टेप्स हैं, मगर उसके बाद अलहदगी की इजाज़त है। इस इजाज़त होने के बावजूद भी जो नापसंदीदा फ़ेल है, हलाल होने के बावजूद भी इसको बहुत नापसंद किया गया है। और बहरहाल औरत जो है वो बहुत मोहब्बत और तवज्जो की तलबगार होती है। वो शेर मैंने आपके साथ पहले भी कई बार शेयर किया है, जो मामूली मामूली बात पे तलाक देने का अमल है या तलाक तलाक कहने का अमल है, इससे गुरेज करना चाहिए। तलाक दे तो रहे हो गुरूर व कहर के साथ, तलाक दे तो रहे हो गुरूर व कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मुझको मेहर के साथ। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। डोनाल्ड ट्रंप भी आने वाले हैं आज। नाज़रीन, ये ऐसा अहमक आदमी है कि साइंसदानों ने बाकायदा वार्निंग जारी की थी कि भाई ये जो सूरज ग्रहण निकला है, अमेरिका में तो खास तौर पे मुकम्मल सूरज ग्रहण था, और इसको नेकेड आई से मत देखें वरना आंखों पर असर पड़ेगा। ये मौसूफ नेकेड आई से देख रहे थे बगैर चश्मा लगा के। नहीं, मैं चश्मा ला के देखा, सूरज वेल्ड करना सूरज का कुंडा टूटा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, अल्लामा ने एक जगह लिखा कि वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। एक मखसूस हालात में ये शेर लिखा गया था। आज आसमानों में हमारी बर्बादियों के मशवरे हैं कि नहीं है, मगर वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में हम देखते हैं कि ये मशवरे जरूर जारी हैं। नाज़रीन गिरामी, जनूबी एशिया के बारे में अपने पहले खिताब में सदर ट्रंप ने पाकिस्तान को तंबीह करते हुए, बल्कि मैं तो कहूंगा कि धमकी देते हुए कहा कि अब पाकिस्तान में दहशतगर्दों की कायम पनागाहों के मामले पर मजीद खामोश नहीं रह सकता। मौसूफ फरमाते हैं, और आप देखिए कि कितना गुरूर है, फरमाते हैं कि अमेरिका से शराकतदारी पाकिस्तान के लिए बहुत सूदमंद साबित होगी, लेकिन अगर वो मुसलसल दहशतगर्दों का साथ देगा तो उसके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इन 10-12 सालों में अरबों रुपया हमारा बर्बाद हुआ, सड़कें हमारी बर्बाद हुई, 70,000 जानें हमने दी, और मौसूफ ये कहते हैं कि दहशतगर्दों का साथ हम देते हैं। आप ट्रंप की इस तकरीर को गौर से सुने तो साजिशों के ताने बाने आपको साफ नजर आते हैं। मौसूफ ने अफगानिस्तान की तरक्की में इंडिया के किरदार की भी तारीफ की और जोर दिया कि वो इक्तिसादी और माली तौर पर भी अफगानिस्तान की मदद करे। जो कुछ इंडिया वहां कर रहा है, जिस चीज पर इन्वेस्ट कर रहा है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। मगर हमारे यहाँ क्या हो रहा है नाज़रीन गिरामी, आप अंदाजा करें कि ये नौबत क्यों आई। जब सदर ट्रंप आए उस वक्त हमारे पास कोई वजीर खारजा नहीं था। जो मौसूफ तारिक फातमी साहब थे, वो यानी कि हफ्तों वहां कयाम किया उन्होंने, मगर न लॉबिंग कर सके न मुलाकातें कर सके वाशिंगटन में। आपका जब वजीर खारजा नहीं होगा तो पॉलिसी कैसे बनेगी? और वजह उसकी सीधी सी ये थी कि मियां नवाज शरीफ साहब हमेशा खाइफ रहे कि अगर किसी को वजीर खारजा बनाएंगे, जैसे कि शाह महमूद कुरैशी थे या कोई भी ऐसा आदमी जो अपनी एक पर्सनैलिटी रखता हो, अपनी एक राय रखता हो, वो पाकिस्तान का फेस होगा, तो कहीं उसको मकबूलियत हासिल ना हो जाए, उसके कनेक्शंस ना बन जाएं। पाकिस्तान को नुकसान होता है भले हो, मगर मेरे हाथ से ताकत ना जाए, मेरे हाथ से वजारतें ना जाएं, इसलिए कि कोई ऐसी मुतबादिल क़यादत पैदा ही ना हो सके कि इनके अलावा भी कोई पाकिस्तान को लीड कर सके, जिसका शाखसाना हम आज देख रहे हैं। अगर हमने अच्छी तरह से लॉबिंग की होती, और पाकिस्तानी डॉक्टर्स को वहां सल्यूट करते हैं लोग, पाकिस्तानी डॉक्टर्स के जरिए, इसके अलावा भी जो पाकिस्तानी वहां काम करते हैं, उनका एक मकाम है, वो लॉबिंग करके आज जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल से पाकिस्तान को बचा सकते थे।
और आज भी जब ट्रंप पाकिस्तान के खिलाफ तबले जंग बजा रहा है, आप ये देखिए कि पाकिस्तानियों की तवज्जो किस तरफ है, हमारे जो सियासतदान है कि 62-63 को किसी तरह से निकाल दिया जाए, और सिर्फ इसलिए निकाल दिया जाए कि एक शख्स जो नाअहल हो चुका है वो किसी तरीके से वापस आ सके। सिवाय 62-63 के इनको और कुछ नहीं सूझ रहा है। दुनिया वही वाली बात है कि हमारी बर्बादियों के किस तरीके से दुनिया मशवरे कर रही है, उस पर किसी को फिक्र नहीं है। किसी को इस बात की फिक्र नहीं कि चीन का सबसे पहला बयान आया है, इसकी इतनी सिग्निफिकेंस है कि चीन का सबसे पहला बयान जो है वो पाकिस्तान के हक में आया है। बहरहाल चलते हैं व्हाइट हाउस और देखते हैं कि मौसूफ कर क्या रहे हैं। की हो गया जे भैन, क्यों खप रहे हो? मेरा खावंद है, मैं जानती नहीं ओनू, जंग कर देगा, जंग कर देगा। जंग दे टाइम ओदे कोल उठिया ही नहीं जांदा। सुत्ता मरा रहेगा, खाना खराब होकर जाना। अच्छा बीबी, एक बात बताइए, हाँ जी। वो जब गालिबन इसराइल का दौरा था तो आपने उनका हाथ क्यों झटक दिया था अपने शौहर का? भैन की दसा शक करदा जे अंतर जाना मेरे ते। अच्छा। आहो, एक भाई आया अरबी, वो सऊदीया दे दौरे ते। जब उससे पहले सऊदीया के दौरे पे गए आहो, थे। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਬਾਗ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੇ? ਬਸ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ? ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੱਕੀ ਜੇ। तो आप दोनों की उम्रों में फर्क भी तो बहुत है ना, जब इतना फर्क हो तो इस किस्म के मसाइल पैदा हो जाते हैं। ਆਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਟਰੰਪ ਚਾਚਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਚੈਕੋ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੂਰ ਦੂਰ। ਹਾਏ ਭਾਈ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਆਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬਾਲਕਨੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। अब वहां जाके फर्स्ट लेडी जहां बाज़ औक़ात कभी ਟਾਟਾ ਕਰਦੀ, wave कर- ਇਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਕਰਦੀ। ਉੱਥੇ ਜਾਨੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਐ? ਮੇਰੀ ਮਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਵਰਚਨ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਫੇਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। अच्छा जी, बुलाएं तो सही, उसे है किधर वो? ਵੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਿਆ, ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ, ਪੜਵਈਆ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬੋਲਨੀ ਆ। ਵੇ ਟਰੰਪਾ, ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈ, ਵੇ ਕਿਸੇ ਭੂਤਨੀ ਦੀ ਆ, ਵੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਸਣ ਵਾਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਮਾਰ। ਤੈਨੂੰ ਡੈਂਗੀ ਮੱਛਰ ਲੜੇ, ਵੇ ਅੰਦਰ ਮਰ ਜਾ, ਹੁਣ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਭੇਜਾ। ਬਾਜੀ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਕੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਬੈਠੀ ਆ, ਅੰਤਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਦੰਦਾਸਾ ਮਾਰ ਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੈਰ ਏ, ਅੱਜ ਰੋਬਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਤੇ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਦੰਦਾਸਾ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਮਾਰ दीजिए। अच्छा जी, ट्रंप साहब मुझे ये बताएं, पाकिस्तान ने की बिगाड़िया तोड़ा? इतना जो आप भारत के साथ मिलकर उससे पिंगे बढ़ाए जा रहे हैं और पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ाते चले जा रहे हैं, आपने समझावा क्या है पाकिस्तान को? क्या और समझा? आपको लगता है कि पाकिस्तान के बगैर आप इस अफगानिस्तान की दलदल से निकल सकेंगे? ਸ਼ਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਫੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਉਹ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜ਼ਰਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਾਲੀ 'ਚ ਡਿੱਗਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੇ ਬੇਲਚੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। हालांकि बेलचा आपके सर पे दे मारना चाहिए था। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਰੂਸੀ ਫੌਜੀ ਹਾਂ? ਆ ਦੁਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਟਰੰਪਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਇੰਜ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਾਲ, ਅਲਾਹੀ ਖੈਰ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੋਟਾ ਮੁੱਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਟਾ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲੀਡਰ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋਟੇ ਯਾਦ ਹੋਣੇ। ਕਾਕਾ ਕੀ ਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ? आजकल तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब वजीर आज़म। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲੇ ਖੁੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਨਵਾਜ਼ शरीफ ਲੱਥ ਗਿਆ। ये आलम है आपकी मालूमात का इस खित्ते के बारे में। और मेरे भाई, इंडिया का लगाया हुआ चश्मा उतार के देखोगे ना, तब इस खित्ते के बारे में सही इल्म होगा तुम्हें। एक बात और याद रखो, अगर चैन से हमें नहीं जीने दोगे ना तो अमन तुम्हें भी नसीब नहीं होगा। ਇਹ ਤੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਮੈਨੂੰ। मैं आपको सिर्फ जमीनी हकायक से आगाह कर रहा हूं। जिस तरह चाइना पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है ना, जिस तरह रशिया के साथ दोस्ती का आगाज होने जा रहा है, दुनिया यूरोपियन ब्लॉक को भूल जाएगी जो इस खित्ते में फौजी और इक्तिसादी ब्लॉक बनने जा रहा है। ਕਾਕਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। और भाई, मोदी की तो खुद नींदें उड़ी हुई हैं। जिस ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूं, जिस तरीके से रशिया आहिस्ता आहिस्ता इंडिया से फासला बढ़ा रहा है और पाकिस्तान के करीब आ रहा है, मोदी की तो खुद नींदें उड़ी हुई हैं, खासतौर पर वन बेल्ट वन रोड के मामले में और सी पैक के मामले में। ਛੱਡੋ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। अच्छा नाज़रीन, ये ऐसा अहमक आदमी है कि साइंसदानों ने बाकायदा वार्निंग जारी की थी कि भाई ये जो सूरज ग्रहण निकला, हमें तो खासतौर पर मुकम्मल सूरज ग्रहण था और इसको नेकेड आई से मत देखें वरना आंखों पर असर पड़ेगा। ये मौसूफ नेकेड आई से देख रहे थे बगैर चश्मा लगा के। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਾ, ਸੂਰਜ ਵੈਲਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਸੂਰਜ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਟੁੱਟਾ ਸੀ।
नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे वक्त के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरहले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत हैं। वक्त हुआ है नवाए सरोज का। आज एक मरतबा फिर मुश्ताक यूसुफी साहब की तहरीर आपके साथ शेयर करते हैं। इसका उन्वान था, इस मजमून का उन्वान था, लाहौर में आज बसंत है। और यूसुफी साहब लिखते हैं कि मियाँ नज़ीर अहमद कड़कड़ाते जाड़े में मलमल का कुर्ता पहने नंगे सर छत पर पतंग ज़रूर उड़ाते। ये भी उनका भोलपन ही था कि मलमल के कुर्ते को जवानी का सर्टिफिकेट और इश्तिहार समझकर पहनते थे। हम 3-4 लड़के चोरी छुपे उनकी खुशबूदार माजूने फ़कत मिठास के लालच में खाते, मगर दिल ही दिल में उनके मौजज़ाना असरात के हफ्तों मुंतज़र रहते। मियाँ साहब लिहाफ सिर्फ उस वक्त ओढ़ते जब हिलहिला के जाड़े से बुखार चढ़ता। यूपी के जाड़े को खातिर में नहीं लाते थे। हकारत से कहते, बादशाहो ये भी कोई सर्दी है। दरअसल लाहौर के जाड़े के बाद वो सिर्फ मलेरिया के जाड़े के कायल थे। आपके मिर्जा अब्दुल वदूद बेग भी तो यही इल्जाम लगाते हैं ना कि यूपी के कल्चर में जाड़े को रज के सेलिब्रेट करने का कोई तसव्वुर नहीं, जबकि पंजाब में गर्मी के इस तरह चोंचले और गमजे नहीं उठाए जाते जिस तरह यूपी में। साहब, यूपी में जाड़े और पंजाब में गर्मी को महज सालाना सजा के तौर पर बर्दाश्त किया जाता है। कमोबेश इसी नौ का फर्क बरसात में नजर आता है। पंजाब में बारिश को फकत इसलिए अंगेज करते हैं कि इसके बगैर फसलें नहीं उग सकती, जबकि यूपी में सावन का वाहिद मकसद व मसरफ ये नजर आता है कि कढ़ाई चढ़ेगी, दरख्तों पर आम और झूले लटकेंगे और झूलों में कमारियां बालियां। पंजाब में दरख्तों पर आम या कुछ और लटकने की ऐसी खुशी सिर्फ तोतों को होती है। और इंग्लैंड में बारिश का फायदा जो साल के 345 दिन होती है, बकिया 20 दिन बर्फबारी होती है। आप ये बताते हैं कि इससे शाइस्तगी और खुश अखलाकी फरोग पाती है। मतलब ये कि जो गालियां अंग्रेज बसूरत दीगर एक दूसरे को देते, वो अब मौसम को देते हैं। मियाँ साहब अक्सर फरमाते हैं कि पतंग और कंकव्वे बनाने में तो लखनऊ वालों का जवाब नहीं, लेकिन बादशाहो हवा लाहौर ही की बेहतर है। पतंग के रंग और मांझे के जौहर तो लाहौर ही के आसमान में खुलते और निखरते हैं। कानपुर में वो काटा इस तरह कहते हैं जैसे माजरत बल्कि ताजियत कर रहे हों। लाहौर के वो काटा में पिछड़े हुए पहलवान की छाती पर चढ़े हुए पहलवान का नारा सुनाई देता है, बल्कि पसीने में शराबोर जिस्म से चिमटी हुई अखाड़े की मिट्टी तक नजर आती है। नाज़रीन, जब मैं यूसुफी साहब का ये मजमून पढ़ रहा था और सोच रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो मुझे ख्याल आया कि बसंत का ये त्यौहार और बसंत के जो रंग हैं, जो पतंगों से आसमान भर जाता है, ये रंग शायद अब लाहौर में भी, लाहौर के आसमानों में भी नापैद होते जा रहे हैं। अब शायद ये हमें किताबों में ही मिला करेंगे। और नाज़रीन ग्रामी, अब वक्त हुआ है खूबसूरत गीत का। आज एलिज़ाबेथ फिर एक मरतबा हमारे साथ हैं और बहुत ही अच्छा फीडबैक है एलिज़ाबेथ का। आप बहुत पसंद करते हैं एलिज़ाबेथ को, और आज ये पेश कर रही हैं आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। जी एलिज़ाबेथ। जी शुक्रिया शाह जी। ब्यूटीफुल, क्या कहने एलिज़ाबेथ, क्या कहने, ब्यूटीफुल। नाज़रीन ग्रामी, ये था आज का शो, और अभी जो गाना एलिज़ाबेथ ने पेश किया उसमें साहिल का जिक्र था, तो पुराने 2 शेर याद आ गए, उन्हीं पर प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। तुम्हें भुलाना ही अव्वल तो दस्तरस में नहीं, तुम्हें भुलाना ही अव्वल तो दस्तरस में नहीं, जो इख्तियार भी होता तो क्या भुला देते। समातों को मैं ताउम्र कोसता सैयद, समातों को मैं ताउम्र कोसता सैयद, वो कुछ ना कहते मगर होंठ तो हिला देते। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।